Hello, dear students. Today we are going to learn the first story from prose section 1.1, An Astrologer's Day. What is an astrologer? Look at this picture. There is a person sitting with his parrot, a diary, some books and other things. By his side one person is sitting. This person is telling the fortune. Look at another picture. The person who is wearing turban, saffron colored dress, the dupatta, and there is a picture of a palm. He is sitting under the banyan tree and one person is showing his palm to that person. This palm reader is an astrologer. Again, look at the third picture. The person is wearing saffron color dress and also pagdi and just meditating something. Another person is just folding hands and doing namaskar, asking something to that person. This person is fortune teller or astrologer. Astrologers, especially in India, there are so many people tell the fortunes of other poor people, tell their future, whether they will remain happy or they will face troubles in their life. You know that such a fortune tellers are, we don't know whether they are really telling the real fortune of people, real future or fate. But in India, astrology is also given too much importance by village people. Even educated people also seek their fortune, take the advice from such fortune tellers, and then they start doing things. This is a well-known story written by R.K. Narayan. R.K. Narayan, he was born on 10th October 1906 and died on 13th May 2001. He was best known for his books that immortalized the fictional town of Malgudi. On YouTube, there are so many stories. Short films are available. If you type Malgudi Days, they are in Hindi, some are in English. So Malgudi was a fictional or imaginary town created by R.K. Narayan, and among these short stories, this is one of them. हिंदी में मिलेगा आपको कपट ज्योतिषी नाम की शॉर्ट फिल्म है, सीरियल है, कपट ज्योतिषी, आप देख सकते हैं. R.K. Narayan was graduated from Maharaja's College in Mysore. Graham Greene published his first book, Swami and Friends, his well-known book, and his first collection of short stories, Malgudi Days, was published in 1942. As I told you, मैंने बताया आपको, Malgudi Days नाम की जो किताब थी, collection of short stories. Now these short stories are available in film, short films, Malgudi Days. R.K. Narayan received the Sahitya Academy Award for the guide film, which was published in 1958. आपने देखा होगा हमारे बहुत ख्यातनाम फिल्म स्टार देवानंद, उन्होंने रोल किया ये गाइड फिल्म में और साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला. बहुत ही अच्छी फिल्म है, बुक भी है, नॉवेल है. R.K. Narayan had won several honors including the Padma Bhushan and Padma Vibhushan. चलो हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजर डे. नाउ इधर जो एस्ट्रोलॉजर, पहले पिक्चर देखा आपने, एस्ट्रोलॉजर
एक बाजार में, एक टाउन में रास्ते के किनारे बैठा है, लोगों का इंतज़ार कर रहा है. दिस बाजार मार्केट डे इज़ फुल ऑफ पीपल. पीपल आर बाइंग एंड सेलिंग so many things, and one of them astrologer is also waiting for the customers. लोगों का इंतज़ार कर रहा है, कोई आएगा और उनका भविष्य देखेगा. थोड़ी रीडिंग भी करेंगे हम इस स्टोरी का. लेफ्ट साइड देखो. Punctually at midday he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of Palmyra writing. हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो बैठा है, क्या है उसके पास? काउरी शेल्स, देन स्क्वेयर पीस ऑफ क्लॉथ, an obscure mystic chart on it. एक कपड़ा है, कुछ चार्ट उस पर है, जो चार्ट देखकर लोगों का भविष्य वो बताता है. और दूसरा है एंड देयर इज अ नोटबुक, कुछ भी लिखा है इसने उसमें, जैसा पंचांग बोलते उसके पास है. देन पामेरा राइटिंग, ये पामेरा, पाम नाम का एक पेड़ रहता है, पेड़ की जो स्किन रहती है, बार्क है, उस पर कुछ लिखा रहता है, उसका बंडल उसके पास है. एंड ही हैज़ अप्लाइड ऐश एंड अदर सब्सटेंसेस टू हिज फॉरहेड. वो देखो कैसा बना है, ये ऐसा बन रहा है और बैठा है और इंतज़ार कर रहा है. So he was sitting just, his forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with sharp abnormal glint, which was really an outcome of a continual searching look for customers. लोगों का इंतज़ार कर रहा है. अलग उसका उसने वेशी ऐसा परिधान किया है कि पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. लोगों का भवितव्य या भविष्य बताने के लिए वो बैठा है. जैसी क्राउड बढ़ती जा रही है, दिन भर कोई ना कोई आता है, कोई देखता है और इसका सलाह लेता है. इधर अदर पीपल भी है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केट टाउन है, पीपल आर सेलिंग एंड बाइंग डिफरेंट थिंग्स. द क्राउड इज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, क्या क्या है देखो. फॉर एग्जाम्पल पीपल आर सेलिंग मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, magicians, and above all the auctioneer of cheap cloth, who created enough din all day to attract the whole town. अलग अलग लोग अपना सामान बेचने के लिए अलग अलग तरीके अप्लाई करते हैं, ट्रिक्स अप्लाई करते हैं. कुछ लोग तो हम उनकी आर्टिकल जो है उनको अलग अलग नाम देते हैं. जैसा है फॉर एग्जांपल जो ज्योतिषी बैठा है, फॉर्चून टेलर, उनके बगल में एक कौन है? मूंगफली बेचने वाला. Next to him, in vociferousness, came a vendor of fried groundnut, who gave his wear a fancy name each day. रोज वो मूंगफली बेचने वाला अपने मूंगफली को अलग अलग नाम देता है. क्या क्या नाम है देखो. कॉलिंग बॉम्बे आइसक्रीम one day, and on the next Delhi almond, on the third Raja's delicacy, and so on and so on. तो ऐसे ही अलग अलग लोग बैठे इस पेज पर दिखा है, सब लिखा है. आई एम नॉट गोइंग टू रीड एवरीथिंग, मैं खाली बताता हूँ. उनके बगल में यह हमारा एस्ट्रोलॉजर भी बैठा है. अभी रात होने जा रही है, रास्ते पर लाइट नहीं है, लेकिन लोगों जो सेलर्स है, अलग अलग सेलर्स, उनके पास कुछ लैम्प्स है, लैंटर्न्स है, उनके सहारे वो लोग और अभी भी बेच रहे हैं. हमारा ज्योतिषी बैठा है, जो ज्योतिषी के बाजू में बगल में जो मूंगफली वाला है, उसने जो आग जलाई है, उसके पास जो लैंप है, वो लैंप के रोशनी में ये भी लोगों का भवितव्य या फ्यूचर बता रहा है. ये कौन है? एस्ट्रोलॉजर्स नेम इज नॉट गिवन इन द स्टोरी. उसका नाम नहीं दिया है. ही हैड लेफ्ट his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home. But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest
till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है, he did not want to become astrologer in his life. अगर ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता तो उसकी ज़िंदगी एकदम सामान्य होती. वो किसान का बेटा था, खेती करता, क्रॉप्स प्रोड्यूस करता और आराम से रहता, शादी कर लेता, आराम से ज़िंदगी जी लेता. लेकिन बाय एक्सीडेंट ही बिकेम एन एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर भी ऐसा बना है, नॉट बाय डूइंग एनी कोर्स. ये कोई कोर्स नहीं एस्ट्रोलॉजी का. कोर्स कंप्लीट करके नहीं बना, तो बाय गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग द फेसेस ऑफ डिफरेंट पीपल. लोगों के चेहरे स्टडी करके बराबर. ही हैड स्टडीड सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल. वो लोग क्या करते हैं, बराबर आपका चेहरा स्टडी करते हैं और बराबर कंक्लूजन निकालते कि यस ये पर्सन को कुछ तकलीफ होगी. अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बता दूंगा और उनके मन में डर पैदा करूंगा, तो बराबर मैं जो बताऊंगा, उसका भविष्य जो मैं बताऊंगा, वो लोग मानेंगे. तो ऐसा इधर देखो, ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मैरिज, मनी एंड ट्रैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज. क्या प्रॉब्लम होता है, किसी की मैरिज, शादी नहीं हुई है, किसी के पास पैसा नहीं, किसी की नौकरी नहीं है, और किसी को दूसरा कुछ प्रॉब्लम है. लेकिन इफ प्रॉब्लम गोज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, वी सीक द हेल्प ऑफ आइदर गॉड और द पर्सन हु टेल्स आवर फॉर्चून. हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर कुछ काम या कुछ जो हमें करना हमारे कंट्रोल के बाहर जाता है, हो नहीं रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ऐसा लगता है अरे हमारे नसीब में नहीं है, चलो ज्योतिषी के पास जाएंगे, किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे. ब्राह्मण मतलब कास्ट नहीं, जो फॉर्चून बताता है, हमारा भविष्य बताता है, फ्यूचर के बारे में कुछ बताता है, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. क्योंकि उस कुंडली में जो लिखा है, वो मेरे कुंडली में जो लिखा है, वो बराबर सलाह देगा, एडवाइस देगा, और बाद में ही विल सॉल्व माई प्रॉब्लम्स. ऐसा ही ये हमारा ज्योतिषी जो है, वो क्या करता था, इधर बाजार में बैठा है, लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन. विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. 5 मिनट, अगर किसी का हाथ में लिया, 5 मिनट में वो बराबर स्टडी करके कंक्लूजन निकालता था, तो प्रॉब्लम क्या है. और उसका फीस कितना लेता था, ही चार्ज 3 pies पर क्वेश्चन. पाई वॉज ओल्ड कॉइन, इट वॉज ओल्ड कॉइन used in India, but now it is not there, not working in current situation. Now today we do not use pies, rupees and paise we are using. He charged 3 pies per question. 3 per question का 3 पाई लेता था. He never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. हाथ में हाथ लेता था और 10 मिनट का तक वो इंतजार करता था. बराबर सामने वाला बोलता था, यस बुआ जी, महाराज क्या प्रॉब्लम है. तो बराबर ये ऐसा ये करता था, कंक्लूजन निकालता था, सामने वाला रेडी हो जाता था पैसे देने के लिए. सो एटलीस्ट 10 minutes which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest result for your efforts. 9 of 10 were disposed to agree with him. Or he questioned, is there a woman in your family, maybe even a distant relative, who is not disposed towards you? Or he gave an analysis of character. Most of your troubles are due to your nature. How can you be the otherwise with Saturn who is. वो क्या बोलता है, अलग अलग मतलब लोगों की समस्या अलग अलग रहती थी, लेकिन कम से 10 लोगों में से एक की समस्या तो परफेक्ट उसकी गेसिंग बराबर हो जाती थी. पहले बता दें, अरे आप बहुत काम करते हैं, लेकिन आपका काम का कोई वैल्यू ही नहीं रखता, कोई महत्व ही नहीं देता. आपके नसीब में सब काम पूरा होते होते रुक जाता है, उसके पीछे शनि की पीड़ा है, या मंगल आपका अच्छा नहीं है. शनि अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा नहीं है, आपका ग्रह अच्छा नहीं है, तारे अच्छे नहीं है, या आपके
प्रोग्रेस के पीछे, मतलब प्रोग्रेस होती नहीं जा रही, क्योंकि देयर इज अ वुमन इन योर लाइफ, एक औरत है, ऐसी दुष्ट औरत है, वो कुछ होने नहीं दे रही। तो ये ऐसा अंदाज से बोलता था, 10 में से एक तो परफेक्ट एक्सेप्ट कर देता, अरे यार मेरी समस्या तो सेम है, ये महाराज ने, ये ज्योतिषी ने बराबर पहचान ली। तो ऐसा था, ये गेसिंग करता था दूसरे का हाथ देखकर, ऐसा ही कर रहा था। तो क्या हुआ नेक्स्ट में, द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। अभी अंधेरा होने जा रहा है, और जो मूंगफली बेच रहा है, ग्राउंड नट्स बेच रहा है, अभी वो उसने अभी घर जाने की तैयारी की है। तो अभी ये इसका जो है हमारा फॉर्च्यून टेलर, ये एस्ट्रोलॉजर बैठा है, अभी जो मूंगफली वाला जो उसके बगल में बैठा था, उसने सब वो दिया बुझा दिया, अंधेरा हो गया। तो अभी इसको भी लगा कि अभी चलो जाने का टाइम हो गया है, ये मार्केट ख़त्म होने जा रहा है, मैं क्या करूं। तो ये उठने की तैयारी में था एस्ट्रोलॉजर, तो उसको महसूस हुआ कोई आदमी उसके सामने खड़ा है। देखो थोड़ा सा भाग हम पढ़ेंगे। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट which strayed in from somewhere and touched the ground before him. किसी ने उसके सामने खड़ा है कोई आदमी, और ग्राउंड टच किया। He picked up his cowrie shells and paraphernalia and was putting them back into his bag. When the green shaft of light was blotted out, he looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client. उसको लगा, ये ज्योतिषी को, महाराज को लगा कोई क्लाइंट मेरे सामने है, अच्छा मौका है, अभी लास्ट तो होगा पैसा कमाने के लिए। तो ये एस्ट्रोलॉजर बोलता है, यू लुक सो केयरवन, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विथ मी। थोड़े टाइम बैठो, दे दो आपका हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं कुछ बताता हूँ। तो वो आदमी बोलता है, यू कॉल योरसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तू खुद को एस्ट्रोलॉजर बताता है, समझता है तू ज्योतिषी है, किसी का भविष्य भी बताता है। The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose and saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm toward the green shaft of light, "Yours is a nature." उसने हाथ में हाथ लिया और बोला, आपका स्वभाव। तो आधा ही बोलता, हाफ कट कर दिया उसने। वो आदमी बोला, ओ स्टॉप दैट। द अदर से, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे अच्छा कुछ बताओ। वो आदमी को भी मालूम था, हर एक को फॉर्चून टेलर या ज्योतिषी रहते हैं, हर एक को सेम क्वेश्चन या सेम सलाह देते, सेम एडवाइस देते। तो आदमी बोलता है, नहीं स्टॉप करो, आवर फ्रेंड इज पिक्ड। तो ये ज्योतिषी बोलता है, आई चार्ज ओनली 3 प्राइज पर क्वेश्चन, मैं पर क्वेश्चन का 3 प्राइज लूँगा, एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। आपके पैसे के बराबर परफेक्ट मैं आपको एडवाइस दूंगा, एकदम एडवाइस मेरा परफेक्ट रहेगा। आप क्या करो, इफ़ यू आर रेडी प्लीज टेल मी। दैट टाइम एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म। तो वो सामने जो आदमी बैठा है उसने हाथ पीछे खींच लिया और वो बोला, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। मैं आपको 3 पाई नहीं 5 आना दूंगा अगर मेरे सवाल का बराबर जवाब दिया, परफेक्ट सॉल्यूशन बताया तो दूंगा, नहीं तो आपको मुझे ब्याज के सहित पैसे वापस देने पड़ेंगे। इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। लेकिन ये ज्योतिषी बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोलता है वो उस आदमी को, हाँ अगर तेरे क्वेश्चन का जवाब अगर मैंने परफेक्ट दिया, आपको सेटिस्फाई हुआ, तो मुझे 5 रुपये देंगे आप। तो आदमी बोलता है, नो, आई विल गिव यू ओनली 8 अनाज। ये बोलता है 5 रुपये ने कम से कम 8 अनाज आप देंगे और विल यू गिव मी 8 अनाज। तो ये एस्ट्रोलॉजर बोलता है, इस ऑल राइट
प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। वो आदमी बोलता है अगर गलत निकला तो डबल आपको देने पड़ेंगे। देखो अभी वो आदमी एडवाइस लेने बैठा है और एस्ट्रोलॉजर उससे बता रहा है। सामने वाला चिरूट मतलब बड़ा सिगारेट रहता है, वो सिगारेट पीता है और द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द माच। तो सिगारेट जलाने के लिए ऐसा माचिस उसने जलाई तो माचिस की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी का चेहरा देखा और तुरंत उसकी रिएक्शंस बदल गई। ये एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी को कहीं देखा था लेकिन अभी एकदम टेंशन में आ गया। उसको लगा अरे ये आदमी ने मुझे पहचाना कि नहीं। मैं आपको इधर बताने भूल गया कि एस्ट्रोलॉजर was not original real astrologer. He had become astrologer only because of some deed he had done in past. कुछ किया है और वो छुपाने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर बन के इधर बाजार में आया है, लोगों का भविष्य बताता है। लेकिन अभी जो आदमी उसके सामने बैठा है वो उसका एडवाइस मांग रहा है और अब उसने माचिस जलाई। उस माचिस की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर ने उसका चेहरा देखा तो क्या हुआ, देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हुटेड ऑन द रॉयल रोड, जुटका ड्राइवर स्वर एट देयर हॉर्सेस। या ऐसे ही है, थोड़ा आगे जाके देखते हैं। हियर एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल और क्या बोलता है, हियर टेक योर आना बैक, ये तेरे पैसे वापस लो, मुझे नहीं टाइम, मैं नहीं बताऊंगा आपको। ऐसा क्या हुआ? यस, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे लेट हुआ है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, यू ड्रैग मी इन व्हाइल आई वॉज पासिंग। तो सामने वाला जो आदमी आया इधर बोलता है, नहीं नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे इधर बुलाया और मेरा भविष्य तू बताने वाला है, अभी बताएगा, ये छोड़ के नहीं जाएगा। तुझे पैसे चाहिए, हमारा डील हुआ है, अगर मेरे क्वेश्चन का परफेक्ट तूने जवाब दिया तो आई विल गिव यू 8 आनाज। यस आई एम रेडी बट यू शुड नॉट गो, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो। तो क्या बोल रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो, आज मुझे छोड़ दो, मैं कल आऊंगा, कल बताऊंगा तेरा भविष्य। द अदर थ्रस्ट हिज पाम एंड हिज फेस एंड सेड, चैलेंज चैलेंज। नहीं नहीं, एक बार चैलेंज किया, एक्सेप्ट किया, तो चैलेंज चैलेंज, go on. And in this way he was just holding the hand of that astrologer. That man was not allowing to go. अभी देखो क्या हुआ। तो बोलता है, stop, said the other, I don't want all that. Shall I succeed in my present search or not? Answer this and go. मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर ये मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, वो आदमी मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ। अभी बहुत इंटरेस्टिंग टर्न है, पूरा पढ़ेंगे। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। मैं अगर तू इधर से जा रहा हो, मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दो, नहीं तो तेरे सब पैसे मैं वापस लूंगा, मैं तुझे दूंगा नहीं। द एस्ट्रोलॉजर मटर फ्यू इनकेंटेशंस एंड रिप्लाइड। तो एस्ट्रोलॉजर ने, मैंने आपको बताया, इसका चेहरा देखा, यह आदमी कौन है, एस्ट्रोलॉजर का मालूम है। उसने कुछ वर्ड जैसे आंखें बंद कर दी और कुछ वर्ड बोला और बोलता है, ऑल राइट आई विल स्पीक बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग। तू मुझे 1 रुपया देगा क्या? अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू व्हाट यू लाइक। नहीं तो मैं मेरा मुंह नहीं खोलूंगा, तुझे जो करना है वो करो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर एग्रीड। तो दूसरा आदमी ने वो मान्य कर दिया, तो बोले एक्सेप्ट करता है। बोलता है, द एस्ट्रोलॉजर सेड, यू आर लेफ्ट फॉर अ डेड, एम आई राइट। आपको मरा हुआ समझ के छोड़ के कि कोई गया था, आपको मारने की कोशिश की। यू आर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। तो ये एस्ट्रोलॉजर ने बताया, तुझे कोई किसी ने मारने की कोशिश की थी और तू मरा हुआ समझ के तुझे छोड़ दिया था, बराबर है।
तो आदमी एक परफेक्ट आया, आंसर का जवाब तो परफेक्ट आया। बोलता है यस, ए टेल मी मोर, अ नाइफ हैज पास थ्रू योर वंस, आपको छुरी से किसी ने मारने की कोशिश की थी। गुड फेलो, ही बेयर ए चेस्ट टू शो द स्कार, तो बराबर उसको उस पर उसके गर्दन पर किसी ने चाकू चलाया था, तो उसने स्कार दिखाया और बोला यस यस यस, एंड देन यू आर पुश्ड इनटू ए वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, और बाद में आपको किसी ने नज़दीक के खेत के बाजू में जो कुआं था, कुएं में आपको ढकेल दिया था, आप मरा हुआ समझ के कुएं में फेंक दिया था। तो ये तो बराबर था, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी को पहचाना था। आई शुड हैव बीन डेड, वो आदमी क्या बोलता है अभी, आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इनटू द वेल, मैं मर जाता अगर कोई उधर से जाने वाला आदमी, रास्ते से जा कोई मुसाफिर था, उसने कुएं में झुक कर देखा, मैं अंदर चिल्ला रहा था, रो रहा था, क्योंकि चाकू मार के किसी ने मुझे मरा हुआ समझ के फेंक दिया था। अगर वो आदमी नज़दीक से नहीं जाता, झुक कर नहीं देखता, तो मैं मर जाता। When shall I get him? He asked. अभी वो बोलता है अब मैं उस आदमी को पकड़ने वाला हूँ, कभी मिलेगा माना, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बताओ मुझे। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या, क्यों? आंसर द एस्ट्रोलॉजर, ही डाइड 4 months ago इन अ फार ऑफ टाउन, दूर गांव में वो 4 महीने पहले ही मर गया। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम, द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट, द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीड, एंड देन बोलता है ये तो आपको कभी मिलेगा नहीं। एस्ट्रोलॉजर बोलता है आपको कभी वो आदमी नहीं मिलेगा जिसे तू ढूंढ रहा है, गुरु नायक। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है वो आदमी को गुरु नायक, तो आदमी को ऐसा एकदम शॉक बन जाता है कि मेरा नाम भी तुझे मालूम है। यू नो माई नेम, द अदर सेड, टेकन अबैक, सरप्राइज हुआ, आपको मेरा नाम भी कैसा मालूम है? तो एस्ट्रोलॉजर पूरा बता देता है। अभी तो उसकी कंट्रोल में आ गया क्योंकि उसको पहचानता, लेकिन ये आदमी को नहीं मालूम, एस्ट्रोलॉजर ने उसे पहचाना है। एस्ट्रोलॉजर ने उसे पहचाना, इसका नाम गुरुनायक भी है, लेकिन गुरुनायक को मालूम नहीं है। ही डिड नॉट नो वेदर दैट पर्सन हु इज टेलिंग द फॉर्चून, द एस्ट्रोलॉजर, इज रियली द पर्सन हु इज इन सर्च ऑफ हिम। तो क्या होता है देखिएगा ये, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरुनायक, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. तो वो जो एस्ट्रोलॉजर, ये आदमी को गुरु नायक इसका नाम है, एस्ट्रोलॉजर का नाम पूरी स्टोरी में नहीं दिया। अभी जो गुरु नायक आया है एडवाइस देने के लिए, एस्ट्रोलॉजर बोलता है गुरु नायक तू अभी तेरे गांव जा, 2 दिन लगेंगे तुझे पैदल चलने में, 2 दिन तेरे गांव में पहुंच जा और कभी भी तेरे घर के बाहर मत जाओ, क्योंकि अगर तू बाहर जाएगा तो तेरे जान को खतरा है। तू अगर बाहर नहीं जाएगा, बाहर ही नहीं निकलेगा, तू और 100 साल जीने वाला है। तो वो आदमी बोलता है व्हाई शुड आई लिव होम अगेन, मैं क्यों घर छोड़ूंगा, क्यों मुझे खतरा है? तो ये बोलता है, वो आदमी बोलता है आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन लुक फॉर हिम एंड चोक आउट ऑफ हिज लाइफ इफ आई मेट हिम। मैं उस आदमी को पकड़ने वाला हूँ, जिस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं उसको पकड़ने वाला हूँ, तो कुछ मुझे क्यों होगा, मेरी जान को क्यों खतरा है? ही हैज़ एस्केप्ड माई हैंड्स, आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, द अदर लुक्ड ग्रेटिफाइड टू हियर। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, जो बताता है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4 महीने पहले ही वो आदमी मर गया। जिस आदमी ने तुझे मारने की कोशिश की थी वो तो 4 महीने पहले एक्सीडेंट में मारा गया, लॉरी के अंदर
लॉरी के नीचे आकर वो ही वॉज क्रश्ड, वो मर गया। एस्ट्रोलॉजर झूठ बोलता है, लेकिन अभी वो आदमी टेंशन में आ जाता है। क्या होता है? Finally, the place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. अभी अंधेरा बहुत हो गया। बाजू में जो मूंगफली बेचने वाला था वो ही चला गया। अभी एस्ट्रोलॉजर ने सब उसके जो पामेरा राइटिंग बुक है, अदर थिंग्स है, काउरी शेल्स एंड एवरीथिंग, ही जस्ट कलेक्टेड एंड स्टार्टेड टू लीव होम। खाली अभी जिस आदमी को मतलब गुरु नायक को भविष्य बताया है उससे फीस आना है उसे। इट वॉज नियरली, अभी क्या हुआ तो कुछ पैसे दिए और चला गया। क्या हुआ इधर? अभी वो उसके गांव जाने लगा है। ही वॉज जस्ट गोइंग टू हिज होम। कौन? एस्ट्रोलॉजर। तो टाइम कितना हुआ है? नियरली मिडनाइट। एंड व्हेन एस्ट्रोलॉजर रीच्ड होम हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर। उसकी बीवी दरवाजे में उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि बहुत अंधेरा और मिडनाइट हुआ है, रात का आधी रात हो चुकी है। एंड ही डिमांडेड, हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। वो पूछती, इतने क्यों लेट आए, क्या काम था इतने टाइम? ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर एंड सेड, काउंट देम, वन मैन गिव ऑल दैट। उसके हाथ में बहुत पैसे, सारे पैसे कॉइन्स है, उसने आपके बीवी के सामने रख दिए। बोले, गिनो इनको। एक आदमी ने मुझे दिया है 12.5 आनाज, 12 अनाज एंड एक आधा आना है, 12.5 अनाज। शी सेड, काउंटिंग। वो गिनने लगे, बहुत खुश हुई। शी वॉज ओवरजॉयड। आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। मैं कुछ गुड़ और कुछ नारियल लूँगी, क्योंकि मुझे खीर बनाना है। शी हर देयर इकोनॉमिकल कंडीशन इज़ वेरी वेरी पुअर। बहुत दिनों से उसने खीर नहीं बनाई थी, स्वीट नहीं बनाया था, और लड़की भी बोल रही थी उनकी कि खीर चाहिए। सो आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। तो ये क्या बोलता है? पैसे तो सामने रख दिए उसके ज्योतिषी, वो जो भविष्य और जो एस्ट्रोलॉजर है, वो क्या बोलता है? द स्वाइन हैज चीटेड मी। वो सुअर ने मुझे फंसाया। ही प्रॉमिस्ड मी अ रुपी, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? वो सुअर ने मुझे इतने ही पैसे दिए, 12 आने, 12.5 मतलब 12.5 आने दिए। उसने प्रॉमिस किया 1 रुपया देने का, लेकिन वो स्वाइन चला गया, वो सुअर चला गया। उसकी बीवी ने उसके चेहरे पर देखा, ही वॉज अंडर टेंशन। आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं, क्या हुआ? वो बोलता है, नथिंग। तो पहले खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद क्या हुआ? आफ्टर डिनर, सिटिंग ऑन द पाइल, चारपाई पर बैठा, ही टोल्ड हर, डू यू नो ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टुडे। बहुत बड़ा बोझ मेरे कंधे पर था, आज चला गया। मैं टेंशन में हूँ, लेकिन बहुत बड़ा बोझ चला गया। What happened? I thought I had the blood of a man on my hands all these days. अब तक इतनी सालों से, इतने दिनों से मुझे लगता था मेरे हाथ पर किसी का खून लगा है। That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive. वो अपने बीवी को सब बता देता है। वो बीवी को बोलता है, जिस आदमी ने अभी अभी मुझे पैसे दिए इतने 12.5 आने, वही आदमी था, उसका बोझ मेरे कंधे पर था, टेंशन में था इतनी दिनों से, इसीलिए मैं गांव छोड़ के भाग गया। मैं फार्मर बनने वाला था, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया। इधर उधर ये कराया, उधर इधर आकर सेटल हो गया, और तुझसे शादी ये इसीलिए की, नहीं तो मैं गांव में होता, एक अच्छा किसान बन जाता। लेकिन वो जिंदा है। ये बताया तो उसके औरत को, उसे मिसिस बीवी को लगता है ये जिंदा है कौन। वो टेंशन में आ गई। शी बोलती, यू ट्राई टू किल हिम। आपने उसको मारने की कोशिश की थी। Yes, in our village, when I was a silly youngster, we drank, gambled and quarreled badly one day. Why think of it now? Time to sleep, he said, yawning and stretched himself on a pile. अभी ये बोलता है एस्ट्रोलॉजर, जाने दो ना, छोड़ दो। अरे जब मैं जवान था,
ये आदमी जो गुरु नायक, उसको नाम नहीं बताया लेकिन गुरु नायक, हम सब एक साथ पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे और नशे में मैंने उसको मारा और मरा हुआ समझ के कुएं में फेंक दिया। जाने दो, उसको समझ में नहीं, आज वो मुझे मिला, छोड़ दो ना, चलो। और वो पायल पर बैठ गया। ऐसे ही ये दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। Actually, astrologer is a fake astrologer. He is telling fortune of other people only by reading their faces and by the experience of studying the faces of other people. ऐसे ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ में नहीं आया तो ये वीडियो दोबारा सुनो, बार बार सुनो। आई एम सेंडिंग यू अनदर वीडियो ऑल्सो। टिल देन, बाय बाय।